کووڈ ابھی بھی دنیا کی خبروں کی سب سے بڑی خبر ہے. کہیں تو اس کی سیکنڈ ویو چل رہی ہے اور کہیں تھرڈ ویو، اور کووڈ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. ویکسینیشن ہو رہی ہے، ویکسینز آ چکی ہیں، مگر ابھی بھی دنیا کو سب سے بڑا خطرہ کووڈ-19 پینڈیمک سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہم کریں گے آج کے نیوز انالیسز میں. جب ہم بھارت اور پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دونوں طرف کے لیڈرز یہی کہتے ہیں کہ کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے بیچ، اور وہ ہے بھی. پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے جرمنی میں پھر دہرائی یہ بات، اور انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم سری نگر سے جو اطلاعات سن رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. پچھلے دنوں فاروق عبداللہ نے بھی کہا کہ ہم دونوں کنٹریز کے بیچ ہونے والی سیز فائر کو انڈورس کرتے ہیں. محبوبہ مفتی نے آج ہی کہا ہے کہ میں اپنے جوانوں سے کہتی ہوں، کشمیریوں سے کہتی ہوں کہ گن کو نیچے رکھ دیں. یہ محبوبہ مفتی کی لینگویج ہے. اس پہ بھی بات چیت ہوگی. اور پاکستان میں مولانا خادم رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی کو گرفتار کر لیا گیا. سعد رضوی یہ حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے باہر نکالو، فرانسیسی ایمبیسی کو بند کرو. اور بلاول بھٹو نے اپوزیشن کے اتحاد میں آخری کیل بھی جو ایک ہمارا ایکسپریشن ہے تابوت میں ٹھونک دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اب کمپنی نہیں چلے گی. یعنی اتحاد کی کمپنی جو اپوزیشن پارٹیوں کی ہے وہ اب نہیں چلے گی. دیگر مسلمان جو ہیں اس وقت دنیا میں سپورٹ حاصل کر رہے ہیں، کینیڈا کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی، یورپ کی طرف سے بھی. اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی اچھی خبر ملے گی ان ٹرمز آف چائنا کی جو پرسیکیوشن چل رہی ہے ویگر مسلمز کے ساتھ چائنا میں، اس سلسلہ میں اس پہ بھی بات چیت ہوگی. اور پرائم منسٹر ٹروڈو نے ابھی اسی ویکینڈ پر لبرل کنونشن سے خطاب کیا ہے. بہت سارے سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کینیڈا کے کہ اگر اس وقت کووڈ کی یہ والی سخت لہر کینیڈا میں نہ آئی ہوتی تو شاید لبرل پارٹی الیکشن کروانے کا اندیا دے دیتی، الیکشن کروانے کی بات کر دیتی. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن اب فال میں ہو. یہ سب باتیں آج کے نیوز انالیسز میں. سب سے پہلے بات چیت شروع کرتے ہیں کشمیر سے، کیونکہ دونوں ملکوں کے لیڈرز یہی کہتے ہیں کہ کشمیر ہی ہمارے بیچ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے بڑا مسئلہ کشمیر ہے. میں تو خیر اور بھی مسئلے سمجھتا ہوں جو ایک لمبے عرصے سے ہندو ہیٹڈ چلا آ رہا ہے، وہ میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہے جو بدقسمتی سے ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد بنا، جس سے پاکستان بنا. اور پاکستان کی بکس میں آج بھی جس طرح ہندو کمیونٹیز کے لیے ڈیروگیٹری ورڈز بڑھتے جاتے ہیں، اس پہ میں پھر بات چیت کروں گا. اس پہ میں کئی بار بات چیت کر چکا ہوں. لیکن سب سے پہلے محبوبہ مفتی کا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس پہ پھر میں اپنی کمنٹری کروں گا. میری گزارش ہے جموں کشمیر کے نوجوانوں سے، میرے بچوں، میرے بھائیوں، بندوق مت اٹھاؤ. بندوق کی زبان کوئی نہیں سمجھے گا. دنیا میں بندوق کے خلاف ہیں لوگ. اگر آپ امن سے جمہوری طریقے سے اپنی بات کہیں گے تو ساری دنیا سنے گی. اگر بندوق سے کہو گے تو مارے جاؤ گے اور کچھ نہیں ملے گا. میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے، بندوق کا راستہ ترک کر دو. بات کرو جمہوری نظام میں، بات کرو. آج نہیں سنیں گے، کل نہیں سنیں گے، آخرکار ان کو بات سننی پڑے گی. ہم اپنے ملک سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہم سے چھینا واپس کر دو اور سود کے سمیت واپس کر دو. اگر آپ کو جموں کشمیر کے لوگ چاہیے تو آپ نے جو ہماری عزت پامال کی، ہمارا تشخص پامال کیا، اس کو بحال کرنا پڑے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہ اپنے ملک سے ہم کہتے ہیں. کس سے کہوں میں؟ ان کو غصہ کیوں آتا ہے جب محبوبہ مفتی کہتی ہے 370 بحال کرو، ہمارا تشخص بحال کرو، ہماری عزت بحال کرو، تو ان کو بی جے پی والوں کے سرکار کو
ये हमारे बच्चे हैं, इनको वापस आना चाहिए, मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर के लिए दूसरा तरीका क्यों? अगर आसाम के मिलिटेंटों को वजीर आजम दावत देते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ, बंदूक छोड़ दो, अगर बोडोस के साथ बातचीत हो रही है तो जम्मू कश्मीर में क्यों तकलीफ होती है आपको? जम्मू कश्मीर में क्यों बार बार मार दाड़ जेल और उसके बगैर कोई और चारा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर की, बल्कि अब तो यूनियन टेरिटरीज बन जाने के बाद कश्मीर की एक मारूफ लीडर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैं अपने नौजवानों से अपील करती हूँ कि वो बंदूक का रास्ता छोड़ दें। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये बात वो कई सालों से कह रही हैं, जब चीफ मिनिस्टर थी तब भी कहा करती थी, आज भी वो कह रही हैं। तो क्या वाकई ही जम्मू के या कश्मीर के ख़ास तौर पर कश्मीर की बात करनी चाहिए, कश्मीर के नौजवान अभी भी बंदूक से बहुत मोहब्बत करते हैं और महबूबा मुफ्ती को उन्हें बार बार अपील करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या वो अपना वज़न दिखाना चाहती हैं कि मेरे कहने से वहाँ के जो नौजवान हैं वो बंदूक छोड़ देंगे? और क्या वाकई गली गली मोहल्ले मोहल्ले नौजवान वहाँ पर बंदूकें लेकर फिर रहे हैं? अगर जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ख़ास तौर पर वहाँ के बहुत ही वेल नोन, तो क्या ऐसी सिचुएशन है? जो अब तक की ख़बरें हैं और जो अब तक की रिपोर्ट्स भी हम देखते हैं और जो हमारा टैग टीवी का भी कश्मीर के बहुत सारे साथियों से रब्ता है, लीडरशिप से रब्ता है, हम चाहेंगे कि उनको भी अब अपने टीवी पर लाएं। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है कि कोई बच्चे ने बंदूक पकड़ी हुई हो। पहले महबूबा मुफ्ती कहा करती थी कि चंद सौ नौजवान हैं जो पत्थर फेंकते हैं, गोली चलाते हैं। तो अब वो लगता है कि अपना वज़न दिखाने के लिए कह रही हैं, अपनी पॉलिटिकल वेटेज को दिखाने के लिए कह रही हैं कि मेरे कहने पे ये सब छोड़ देंगे या छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें उनकी और भी लैंग्वेज बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कहती हैं कि बीजेपी वालों को क्यों इस पे एतराज़ होता है कि मैं जब कहती हूँ कि 370 और 35A का ज़माना वापस लाया जाए, यानी जो आर्टिकल्स रिवोक हुए हैं उनको रिपील किया जाए और ये वाली फ़ज़ा बनाई जाए। वो कहती हैं कि हमारी अपनी इंटेग्रिटी कोट अनकोट वो है उसको बरकरार होना चाहिए। फिर वो ये कहती हैं कि मैं ये मुतालबा अपने ही देश यानी भारत से ही करूँगी चूँकि हमने भारत से ही इल्हाक किया था। यानी ये बात अभी भी उनकी बड़ी कहना चाहिए कि बहुत वज़न के साथ होती है कि जी हमने किया था, यानी ये हमारी मेहरबानी थी कि हमने किया था। बहरहाल वो इल्हाक राजा हरी सिंह का किया हुआ था। ये लोग कितना उनके साथ थे, इन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए शुरू में इनके फादर ने भी और शेख अब्दुल्ला ने भी एक तरह की इंडोर्समेंट की थी इल्हाक की, मगर इन्होंने जिस तरह का टफ टाइम भी दिया और जिस तरह की पॉलिटिक्स भी की है भारत में, वो वाकई ही भारत का हौसला है कि भारत इस तरह की पॉलिटिक्स को अब तक बर्दाश्त करता चला आ रहा है कि एक तरफ कुछ बात की जाती है, दूसरी तरफ ये लीडर कुछ बात करते हैं, ये अपने मोहरे कुछ और तरह से दिखाते हैं। इधर पाकिस्तान के साथ भी होते हैं, भारत के साथ भी होते हैं, और जब फिर बात नहीं बन पाती तो फिर अल्टीमेटली भारत से ही कहते हैं कि हम आप ही का हिस्सा हैं। लेकिन यही शायद ट्रेजेडी है या यही डायलेमा है भारत की सियासत का, और जो भारत की सियासी पार्टियां रही हैं, ख़ासतौर पर कांग्रेस का ही राज रहा, उन्होंने ही इन सब को, ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, आप पूरे भारत को देख लीजिए, उन सब में जो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने राग अलापती हैं, उन सब के रागों को सुना और बल्कि उनको ब्रॉडकास्ट भी किया नेशनल सतह पे। बहरहाल अब सूरत हाल काफ़ी चेंज हो चुकी है और महबूबा मुफ्ती की जो ये लैंग्वेज है वो ये बताती है कि वो एक तरह से इस वक्त की जो बीजेपी की सरकार है उनके साथ कंप्रोमाइज़ भी कर चुकी हैं अंदर ही अंदर बैकडोर में, जो कि जाहिर है करना भी चाहिए, चाहे शेख अब्दुल्ला हो चाहे इनकी पार्टी हो, कि भाई हम समझते हैं जो आपने किया दुरुस्त है, मगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए हमें 370 और 35A की बात करते
रहना है होगा। तो यही एक वहाँ का नैरेटिव है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग लैंग्वेज थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ आज के न्यूज़ एनालिसिस में शेयर करूँ। बाकी इसको एनालाइज आप खुद भी बेहतर तरह से कर सकते हैं। बातचीत हो रही है कोविड की। कोविड इस वक्त भारत में बहुत तेज़ी से दोबारा सेकंड वेव की सूरत में फैल रहा है और भारत अब अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है कोविड नंबर्स में। ब्राज़ील को भी क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर रेशो के एतबार से देखा जाए तो भारत अभी भी बहुत सारे कंट्रीज से कम होगा। लेकिन अगर टोटल नंबर्स की तादाद देखी जाए तो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन पॉपुलेशन वाइज अभी भी भारत पीछे होगा। लेकिन वैक्सीन के हवाले से भारत को दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी समझा जाता है। वैसे भी हर मेडिसिन के एतबार से भारत दुनिया की आलमोस्ट सबसे बड़ी फार्मेसी है। इस सारी सिचुएशन में अब भारत में वैक्सीन की कमी की भी इतलात आ रही हैं। लेकिन ये भी खबरें हैं कि जल्द ही इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा। रशिया की जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसको भी भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया। वो भी काफ़ी तादाद में अवेलेबल है और ख़ुद भारत में बनने वाली वैक्सीन भी बहुत जल्द दूसरी खेप की सूरत में दस्तयाब होगी। लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं। इन्हीं नंबरों के बढ़ने के साथ साथ भारत की जो एक्टिविटीज़ हैं 1.3+ बिलियन पीपल लोगों की, उनको काबू करना कोई आसान काम नहीं है। और फिर वहाँ पे बहुत सारे सेक्रेड फेस्टिवल भी हो चुके हैं। आपस की बात यह कि हमारे कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 36 मिलियन के करीब है। 36 मिलियन के करीब है कनाडा की पॉपुलेशन। उसको काबू करना आसान नहीं। तीसरा वेव चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इमरजेंसी ऑर्डर्स चल रहे हैं स्टे एट होम के। मगर जहां जिस स्टूडियो से मैं बात कर रहा हूं, इसी की खिड़कियों से मैं बाहर देखता हूं तो ट्रैफिक बिल्कुल अपने भरपूर अंदाज के साथ चल रही है। लोग तंग आ चुके हैं। लोग अब घरों में बैठने को तैयार नहीं। अभी भारत में कुंभ फेस्टिवल भी हुआ। कुंभ मेला एक बहुत ही अजीम शान मेला है। मेरी भी अपने रब से, भगवान से यही दुआ है कि जब भी कभी मुझे मौका मिले मैं भी इसमें शिरकत करूं, और ख़ास तौर पर उस मेले में जो हर 12 साल के बाद होता है। लेकिन अब इस साल जो यूपी में कुंभ मेला हुआ और उसमें जिस तरह लोगों ने शिरकत की, और ज़ाहिर है उन्होंने कोविड की भी परवाह नहीं की। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि कोविड की परवाह तो हमारे जैसे कम पॉपुलेटेड कंट्रीज़, कनाडा में भी अब ऑलमोस्ट कोई नहीं कर रहा। सिर्फ मॉल बंद हैं और दुकानें अपेरेंटली बंद हैं, मगर ज़िंदगी बहुत रवां दवां है। उस तरह का कोविड लॉकडाउन नहीं है जिस तरह का पहला लॉकडाउन था, यानी पिछले बरस मार्च अप्रैल का। लेकिन अब केसेस भी ज़्यादा हैं और चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। कोविड वायरस के नए स्ट्रेन्स भी आ चुके हैं। बहुत चैलेंजेस हैं। एहतियात हम सबको करनी चाहिए। फेस्टिवल्स आते रहेंगे ज़िंदगी में, हम सब मनाते रहेंगे, और लेकिन हमें एहतियात करनी है। भारत हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, इसलिए कि ये सब हमारी अपनी जानों के लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे परिवारों के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहरहाल उस खूबसूरत कुंभ मेले की एक झलकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
اس خوبصورت کمبھ میلہ کی کچھ جھلکیاں ہم نے آپ کو دکھائیں. آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں کس طرح کا جوش و ولولہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح کی مقدس سیکرڈ انوائرمنٹ بھی ہے. بہرحال ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال کووڈ کسی حد تک چلا جائے. میں اس لیے کسی حد تک کہہ رہا ہوں, ابھی بھی سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایون ویکسینیشن کے بعد بھی ہم یہ یقین رکھیں کہ کووڈ مکمل طور پر چلا جائے گا. اس کو ہمیں آئندہ کئی سالوں تک ڈیل کرنا پڑے گا, چونکہ اس کے کئی نئے سٹرینز ویریئنٹس آنے کے خدشات بھی رہیں گے. ادھر پاکستان سے جو اطلاعات ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں. پاکستان کہ ایک جانے پہچانے ملا خادم رضوی چند مہینے پہلے ایک دم سے ناگہانی طور پر ان نون طریقے سے وفات پا گئے تھے. انہوں نے دھمکی دی تھی فرانس کے سفیر کو اور ایمبیسی کو کہ ہم فرانس کے سفیر کو بھی واپس بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمبیسی بھی بند کرا دیں گے. وہی جو کارٹونوں کا مسئلہ تھا اس پہ بہرحال کافی ہنگامے ہوئے تھے تب بھی, اور پھر ایک دم سے ایک دن پہلے مولانا خادم رضوی نے بہت دھمکیاں دی تھی اور اس کے اگلے روز ان کے ہلاک ہو جانے کی یا مر جانے کی اطلاعات ملی تھی, جو ایک بڑا شاکنگ تھا. کوئی ایسی بیماری بھی واضح طور پر سامنے نہیں تھی, مگر انسان کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا, یہ بھی ایک ریالٹی ہے. ہم سب انسان پانی کے بلبلے ہیں. لیکن اب ان کے صاحبزادے سعد رضوی نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ اپریل 2020 میں کی انہوں نے ڈیٹ دی تھی اور کہا تھا تب تک فرانس کی ایمبیسی کو بھی بند ہو جانا چاہیے اور فرینچ ایمبیسڈر کو بھی نکال دینا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں بھی ایسی ایک قرارداد یا بل پیش کرنا چاہیے پاکستان میں جس سے ان کو نکال باہر کیا جائے. آف کورس یہ ٹیکنیکلی پریکٹیکلی ممکن نہیں, چاہے پاکستان میں کتنا بھی مذہبی جوش و ولولہ پایا جاتا ہو. آج ہی انہوں نے پروٹیسٹ نکالنے کی دھمکی دی تھی اور اس کے انتظامات کا اعلان کیا تھا. 20 اپریل سے ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا. ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. میں یہاں پر وہ ویڈیو کلپ خاص طور پر 2 دکھانا چاہوں گا جو ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس ایک میں سعد رضوی نے اپنی گرفتاری سے ایک روز پہلے کہا تھا کہ وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فرانس کی ایمبیسی کو بند کیا جائے, فرانس کے ایمبیسڈر کو نکال باہر کیا جائے. گرفتاری کے بعد ان کی جماعت کے ایک اور ملا نے اپنی لینگویج برتی ہے. یہ دونوں باتیں سنیے, پھر میں کمنٹری آپ کے ساتھ اپنی شیئر کرتا ہوں. تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا نے اتفاق رائے سے فیصلہ کیا ہے کہ 20 اپریل بروز منگل تک اگر حکومت پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو رات 12:01 پر قبلہ امیر المجاہدین کے مزار اقدس سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ کا آغاز کیا جائے گا. لہذا اہلیان پاکستان تمام تر وابستگیوں سے بالا تر ہو کر خالصتاً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے میدان عمل میں آئیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوں. دوسری طرف ناموس رسالت کے سلسلے میں تحریک لبیک کے ساتھ جو حکومت پاکستان کے مذاکرات چل رہے تھے, معاہدہ طے ہو چکا تھا. مکمل طور پر حکومت پاکستان اس سے انحراف کر چکی ہے اور اپنی غنڈہ گردی پر اتر آئی ہے, اپنی سابقہ روایات کو قائم دوبارہ بحال کر رہی ہے. اور اب مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کو حافظ محمد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تمام عہدیداران کارکنان تک میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جہاں ہیں وہیں پر آپ باہر نکل آئیں, روڈوں پر آ جائیں اور سڑکوں پہ نکل کے آپ احتجاجی مظاہرہ کریں, اور جہاں جہاں بھی آپ ہیں آپ پورے ملک کو جام کر دیں. سعد رضوی کی پاکستان میں شدید کووڈ کے ہونے کے باوجود تحریک لبیک کے مولانا نے مطالبہ کیا ہے عوام سے اور خاص طور پر اپنی مذہبی جماعت کی
जो उनकी लीडरशिप है उनसे भी और कारकुनों से भी कि वो जहाँ जहाँ कहीं हैं बाहर आ जाएं। और आप अभी तक की इतलात के मुताबिक जहाँ जहाँ भी हैं जितना जितना वो बाहर आ सकते हैं वो काफ़ी हद तक बाहर आ रहे हैं। लेकिन ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान में ये जो मजहबी अनासर हैं इनका कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट के पास भी होता है और सियासी जमातें भी इनके साथ खिलवाड़ करती हैं। ये एक अपनी जगह पे रियलिटी है। ये पूरे का पूरा जो एक गैंग है ये इस्तेमाल होता है। लेकिन साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। मगर ये बात वाकई तय है कि पाकिस्तान की किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं कि किसी भी एम्बेसी को और ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्री की किसी एम्बेसी को बंद कर दें, उसके सफ़ीर को निकाल दें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ फिर उस एक कंट्री पर नहीं होगा, सारे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो पाकिस्तान के बारे में बहुत रिएक्ट करेंगे। एक तो ये मसला है, दूसरा पाकिस्तान इस पोजीशन में भी नहीं है इकनॉमिकली कि इस तरह की हरकतें कर सके। लेकिन मुल्लायत जो है वो अपना कारोबार चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी के लिए ये काम करते हैं। और इसके साथ साथ जो अनरेस्ट पॉलिटिकल पाकिस्तान में रहता ही है, वैसे तो पॉलिटिकल अनरेस्ट पूरी दुनिया में ही रहता है किसी न किसी सूरत में, मगर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है। उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को हवा देने के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी बेनिफिट होता है वो उससे पीछे नहीं हटते। लेकिन जो आपने लैंग्वेज मिस्टर साद रिजवी की सुनी, उन्होंने अपने बाप के बारे में जो फौत हो चुके हैं किबला अमीरुल मुजाहिद के जो मकबरे से निकलकर जिस तरह जुलूस की बात की, इससे अंदाज़ा होता है कि मजहबी तंग नज़री किस हद तक पाकिस्तान में अब बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। बातचीत हम कर रहे हैं न्यूज़ एनालिसिस में साउथ एशिया के मसाइल, हमारे कनाडा के इश्यूज़ और वर्ल्ड वाइड जो हम साउथ एशियन से रिलेटेड भी हैं या हमारे अपने अपने मुल्कों के मुताबिक हैं, उन सब को आपके साथ पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुल्लायत जहां पर अपनी इंतहाओं को, शिद्दत पसंदी को छू रही है, वहाँ पर सियासी मंजरनामा भी किसी तौर पर कम नहीं। पाकिस्तान का PDM जो पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नवाज़ और बहुत सारी दूसरी जमातों के एक तरह से मिक्सचर से आगे चल रहा था, वो कुछ हफ्तों से टूटता नज़र आ रहा था। बिलाखिर बिलावल भुट्टो ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कह दिया कि हमारे साथ यानी पीपल्स पार्टी के साथ और ANP के साथ अच्छा सलूक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान नहीं कर रहे थे, तो बराबरी की सतह पर ये होता है। तो उन्होंने ये बात कर दी, लेकिन ये बात तय थी कि इस इत्तेहाद ने टूटना ही था। इसके पीछे बहुत सारी क़ियास-राइयाँ भी हैं और बहुत सारे हक़ाइक़ भी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल इस गठजोड़ को तोड़वाने में कामयाब हुई। इसका इशारा कई बार PTI के एक की मिनिस्टर शेख रशीद बार बार दे चुके हैं और पीपल्स पार्टी के अपने इंटरेस्ट हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने इंटरेस्ट नहीं हैं तो भी गलत होगा, उनके भी अपने ठीक ठाक इंटरेस्ट हैं। सब अपने अपने जो सियासी शहादत के जो अवतार हैं वो चढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि जमहूरियत की रेस्टोरेशन या उसकी वैल्यूज़ की रेस्टोरेशन के लिए वो सिर्फ काम करें। इनफैक्ट इन सब के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। यही ट्रेजेडी होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, डेमोक्रेसीज़ की, कि ये सब जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने अपने मफाद के मुताबिक खेलती हैं, उसी का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट उठाती है और फिर जो पार्टी उनकी गोद में बैठती है उनको वो गोद में बिठा लेते हैं, दूसरे कैंप में चले जाते हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो क्या कहते हैं, एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं थोड़ी सी कमेंट्री करूँगा। सियासत इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है और इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ किया जाता है। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party
and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. For opposition politics to succeed, we must have working relationships within opposition political parties. And there is no concept of show cause notices in democratic movements. बिलावल भुट्टो ने दो बड़ी वजूहात बताई. उन्होंने कहा एक तो शो काज नोटिस देने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले, मौलाना फजल रहमान एंड कंपनी. उन्होंने कहा कभी भी पिछले इत्तेहादों में ऐसा नहीं हुआ और ना ऐसा होना चाहिए. बराबरी जो है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की हर इत्तेहाद में होनी चाहिए, इज़्ज़त सब की बराबर होनी चाहिए. इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इस्तीफ़ों का मुतालबा कर रहे थे हमसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाले, ख़ास तौर पर कि हम इस्तीफ़े दे दें, उन्होंने कहा ये एक आखिरी हरबा होता है. उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, ये एक आखिरी एटम बम होता है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में. लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि ये इत्तेहाद टूट चुका है, लेकिन इस तरह का इत्तेहाद फिर बन जाएगा. पहले भी कई इत्तेहाद बने टूटे, ये सब इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चल रही होती हैं और आवाम को ये कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम आपके लिए कर रहे हैं. ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ये बस अपने ही इंटरेस्ट के लिए चल रहे होते हैं और इसी का फ़ायदा इस्टेब्लिशमेंट और जो डीप स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं वो पाकिस्तान में उठाते हैं. बहरहाल ये तो सिचुएशन है साउथ एशिया के कुछ बहुत ही की इश्यूज़ के हवाले से. अब मैं यहाँ कनाडा में दो अहम वाक़यात हैं उसके हवाले से बातचीत करूँगा. कनाडा ने जब से चाइना पर सैंक्शंस लगाई वीगर मुस्लिम्स के सिलसिला में, वीगर मुस्लिम्स यहाँ पर भी एक्टिव हो रहे हैं. अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगाई, यूरोप ने भी, तो वर्ल्ड वाइड वीगर मुस्लिम्स एक्टिव हो रहे हैं. पिछले हफ्ते उन्होंने एक बहुत बड़ी कार रैली की थी, इसकी ख़बरें हमने ब्रॉडकास्ट की, भारत को भी भेजी, हर जगह ये ख़बरें फैली. यहाँ पर ईस्ट तुर्किस्तान बनाने की ख्वाहिशमंद जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल है अमेरिका कनाडा में, उनकी वाइस प्रेसिडेंट का मैंने पर्सनली एक तरह से इंटरव्यू किया और उसकी मैं वीडियो बाइट्स आपके साथ शेयर करता हूँ. बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की मिस माहिरा गफूर ने, फिर उस पर मैं कमेंट्री करूँगा. देखिए ये वीडियो क्लिप. Scores of members of Uyghur Muslim community held a massive car rally in Canada's Toronto to commemorate the 31st Barin massacre in Chinese-occupied East Turkestan and highlighted ongoing gruesome human rights violations against the community by China. The protesters blamed for the past several years millions of East Turkestan people, mostly of Muslim faith, have been held in concentration camps, prisons and slave labor camps. Mahira Gopur, Vice President of East Turkestan Government in Exile, urged the Indian government to intervene and support the Uyghur nation. I request the Indian government support Uyghur nation. We respect Indian government and we respect their dignity. They never return Uyghur people until today. We didn't hear one even. But some Muslim country keep returning Uyghur people to China and supporting China to genocide in 21st century. मिस माहिरा कपूर ने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की. उन्होंने कहा कि हम भारत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, भारत की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं. उन्होंने कभी भी उइघुर मुस्लिम्स को वापस नहीं भेजा जो भारत गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं दे कीप रिटर्निंग उइघुर मुस्लिम्स या वीगर मुस्लिम्स, ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं. उन्होंने कहा कि वो वापस कर देते हैं. उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है. हम बहुत जल्द आने वाले दिनों में मिस माहिरा गफूर का फुल इंटरव्यू अपने स्टूडियो में भी आपके साथ शेयर करेंगे. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रैली एक हफ़्ता पहले
यहाँ ब्रैम्पटन से हमारे स्टूडियो के बिल्कुल पास, ब्रैम्पटन मिसागा का जो बॉर्डर है, यहाँ पर अल गोर मुस्लिम्स की एक मॉस्क है जो डिक्सी गुरुद्वारा के भी करीब है। वहाँ से ये कार रैली निकली थी और ये डाउनटाउन टोरंटो गई, पूरे डाउनटाउन घूमती रही और चाइनीज़ कॉन्सुलेट डाउनटाउन टोरंटो के बाहर जाकर इन्होंने एहतजाज को अपने वाइंड अप किया था। और मैंने उस मौका पर ही चाइनीज़ कॉन्सुलेट के बाहर ही मिस माहिरा गफूर का एक मुख्तसर सा इंटरव्यू किया था। और भी कुछ वीडियो बाइट्स हैं, मैं आइंदा आने वाले दिनों में शेयर करूंगा, लेकिन उसमें से एक बहुत ही क्रिस्पी वीडियो बाइट मैंने आपके साथ शेयर की जो बहुत ही अहम बात है। उन्होंने कहा कि भारत की हम रिस्पेक्ट करते हैं, भारत की डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं, भारत चाइनीज़ अल गोर मुस्लिम्स का ख्याल करता है, बाकी किसी भी मुस्लिम कंट्री को हमारा कोई ख्याल नहीं है। ये एक रियलिटी है। बहरहाल रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। इस मौका पर जो कनाडा, अमेरिका में बड़ी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी वीगर मुस्लिम्स का ख्याल करना चाहिए और इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज़ को भी वीगर मुस्लिम्स का ख्याल करना चाहिए। इस मौका पर मैं अपने जो मुस्लिम बहन भाई उन सबको रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और आखिर में अपने न्यूज़ एनालिसिस में जो एक अहम वाक़या है इस वीकेंड पर हुआ, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी का वर्चुअल कन्वेंशन था। उस मौका पर प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब करते हुए सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी को लताड़ा, यानी कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा को, और जो सियासी पंडित यही कहते हैं कि अगर इस वक्त कोविड की सेकंड वेव इतनी हार्ड हिट ना होती यहाँ कनाडा में, तो शायद बजट के बाद प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कॉल कर लेते ताकि उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट मेजॉरिटी गवर्नमेंट में बदल जाए। चूँकि उनका यही ख्याल है, जो इस वक्त पोल्स भी बताते हैं कि अगर अब इलेक्शन हो तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की पार्टी शायद पोल्स के मुताबिक मेजॉरिटी गवर्नमेंट बना ले। उन्होंने इस मौका पर कंजर्वेटिव पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर को तनकीद का निशाना बनाया। हम आपके साथ ये वीडियो क्लिप शेयर करते हैं। We know what real change means. Because what this team knows is that finding real solutions means addressing the real challenges people face. And that's something that Erin O'Toole's Conservative Party just can't quite grasp. How disconnected do you have to be to admit that you would have cut CERB, a lifeline for millions of people, during the worst economic crisis in a century? How disconnected do you have to be to call young people lazy when their summer jobs disappeared because of a global pandemic? How disconnected do you have to be to flirt with disinformation on public health and vaccines while a deadly virus takes loved ones, friends, and neighbors? And how disconnected do you have to be to refuse to admit climate change is real, even as people's basements flood and wildfires tear through communities? The problem for Erin O'Toole is that he's not interested in real solutions to real problems. In fact, he's already shown that he's willing to say different things to different people at different times if he thinks it'll help him get ahead. He says he wants to make community. तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की अपनी लिबरल पार्टी के वर्चुअल कन्वेंशन में की गई ये तकरीर एक तरह से इलेक्शन की तकरीर ही लग रही है और यही अगले इलेक्शन का एजेंडा होगा। और प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह कंजर्वेटिव पार्टी पर अटैक किया वो उनके सियासी मिशन का हिस्सा है। और अगर कंजर्वेटिव पार्टी का कन्वेंशन होगा या वहाँ भी कोई सियासी सरगर्मी होगी तो भी वो ऐसी ही लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा कि एरन ओटूल मुख्तलिफ मौका पर मुख्तलिफ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं ताकि अपना वोट बैंक उनका कायम रहे। बिल्कुल ठीक कहा और यही सच प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के लिए है और यही सच ऑलमोस्ट दुनिया के सभी पॉलिटिशियंस के लिए है। अब जनता जहाँ कहीं भी दुनिया में बसती है उनको अंदाज़ा है कि यही सियासी लैंग्वेज है और यही सियासी हरबे हैं। लेकिन अभी भी हमारी इस दुनिया में जनता के बहुत सारे ऐसे परसेंटेज भी हैं जो सियासी लीडरों की बातों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि नॉर्मली और जनरली सियासी लीडरों की एक दूसरे के ख़िलाफ़ यही ज़ुबान इस्तेमाल होती है और इसी तरह
अब दुनिया की डेमोक्रेसी आगे चल रही है। आज का न्यूज़ एनालिसिस ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube के इस चैनल पर डोनेट का बटन है, इसको क्लिक कीजिए और उसको क्लिक करके आप paypal.me/TagTV इंटरनेशनल के राही हमें डोनेट कर सकते हैं, या अपने क्रेडिट कार्ड से डोनेट कर सकते हैं, या पैट्रियन पर आप हमें पैट्रोनाइज भी कर सकते हैं। आखिर में फिर एक बार आप सबका बहुत शुक्रिया, और मुस्लिम बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पर मेरी तरफ से, टैग टीवी की तरफ से रमज़ान मुबारक। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.